والوں, نبی کی محنتوں کو بھول جانے والوں, شادیوں میں ڈیجے لگانے والوں, فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں, نبی کی محنتوں کا احساس کر لو. جو باپ کی محنت کا احساس نہ کرے وہ باپ کا غدار ہے, اور جو نبی کی محنت کا احساس نہ کرے اس کے لیے میں کیا الفاظ کا انتخاب کروں. سنو سنو, ام المومنین کہہ رہی ہے آقا احد کا دن آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن تھا. کہا نہیں عائشہ, لیکن احد کا دن کیا تھا وہ سن لو. 70 لاشیں ایک ساتھ مدینے سے اٹھی ہے, 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں, شہید. اللہ اکبر, یعنی کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہے جب کہیں جا کر اسلام کو ترقی ملی ہے, کتنے ننھے ننھے بچے یتیم ہوئے ہیں, کتنے گھر والے بے گھر ہوئے ہیں, تب یہ دین تم تک پہنچا ہے. دین کو گانے کے دروازے پر بیچنے والوں, دین کو فلموں کی چوکھٹ پر سودا کرنے والوں, قیامت میں مرنا مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے, قبر میں رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. کیا جواب دو گے اپنے نبی کو؟ اللہ اکبر, 70 صحابہ شہید ہوئے اور حضرت امیر حمزہ کی شہادت. اللہ اکبر, شہادت امیر حمزہ. اللہ اللہ, ایک شخص نے امیر حمزہ کو شہید کیا. ایک عورت کے کہنے پر حضرت امیر حمزہ کے کان کاٹے گئے, ناک کاٹی گئی, ہونٹ کاٹے گئے, زبان کاٹی گئی. اللہ اکبر, اور پھر آخری میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چیر کر ان کے سینے سے کلیجہ نکالا گیا, اور کلیجہ نکال کر اس شخص نے جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا کلیجہ نکال کر ایک عورت کے ہاتھ میں دیا, اور وہ عورت حضرت امیر حمزہ کے کلیجے کو اپنے دانتوں سے چبانے لگی. چبانے والی خاتون نے رسول اللہ کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا, اور جب حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا, اللہ کے رسول علیہ السلام جب حضرت امیر حمزہ کے جنازے پر آئے تو آنے کے بعد میرے آقا رو پڑے. اتنا روئے کہ روتے روتے آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو گئی. اور جس دن وہ 70 لوگ شہید ہوئے تھے ان لوگوں کو کفن پہنانے کے لیے مسلمانوں کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا. آج اگر کوئی لاوارث, اگر آج کوئی لاوارث لاش ریلوے اسٹیشن پہ پڑی نظر آتی ہے تو لوگ اس کو بھی چندہ کر کے پورا کفن دیتے ہیں. لیکن اسلام کے لیے وہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں, جن کے لیے قرآن میں آیت آئی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, یہ خاص نازل ہوئی ہے شہدائے احد کے لیے, اور اس کا حکم پھر ہر شہید کے لیے عام ہے قیامت تک کے لیے. لیکن سوچو تو صحیح کہ ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا. اس وقت حضرت امیر حمزہ کی بہن سیدہ صفیہ میدان احد میں موجود تھی. جب دیکھا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے تو اپنے بیٹے حضرت زبیر ابن عوام سے کہا کہ بیٹا میرے گھر میں سوتی 2 دوپٹے کے ٹکڑے موجود ہیں, 2 دوپٹے اٹھا کر کے لاؤ. اور وہ جو 2 دوپٹے اٹھا کر کے لائے تو کہا یا رسول اللہ یہ 2 سوتی دوپٹوں کے ٹکڑے ہیں, میرے بھائی حمزہ کو اس میں آپ کفن پہنا دیں. تو میرے آقا نے روتے ہوئے کہا تھا کہ حمزہ کی بہن اس میدان میں موجود ہیں تو حمزہ کے لیے اس نے کفن کا انتظام کر دیا. لیکن میرا ایک اور بھی تو صحابی ہے جسے دنیا مصعب ابن عمیر کے نام سے جانتی ہے, مصعب کے لیے کون کفن کا انتظام کرے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ کپڑے آپ کے پاس ہیں, آپ جس کو چاہیں دے دیں, حمزہ کی کوئی قید نہیں. تو میرے آقا نے فرمایا ایک حمزہ کے لیے, ایک مصعب ابن عمیر کے لیے, اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر, جانے والا گیا اور روتے ہوئے واپس آیا. عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان کے چہرے پہ کپڑا ڈالتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں, اور پیروں پہ کپڑا ڈالتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. میرے آقا نے روتے ہوئے کہا تھا حمزہ اور مصعب کے چہرے پہ کپڑا ڈال دو اور پیروں پر گھاس ڈال کر ان کے دفن کا انتظام کرو. وہی احد کا دن ہے جس میں رسول اللہ کے دندان شہید ہوئے, وہی احد کا دن ہے جس میں رسول اللہ کے گھٹنوں کو زخمی کیا گیا, حضور کے گالوں کو زخمی
भी किया गया। और फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती है कि या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन उहुद का दिन था। आका फरमाते नहीं, इतनी मुश्किलों के बाद भी कहा उहुद का दिन मुश्किल नहीं था, बल्कि पूछा फिर कौन सा दिन मुश्किल था? तो मेरे आका फरमाते हैं, आयशा, ताइफ का दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था। जश्न मिलाद मुस्तफा की महफिल सजाने वालों, ये ताइफ का दिन क्या दिन था? मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब ताइफ में गए तो एक ही गुलाम साथ में था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ताइफ वालों के घर घर जाते और उनको दीन की दावत देते, लेकिन किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। बल्कि इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन चंद लड़कों को, चंद छोकरों को अल्लाह के रसूल के पीछे लगा दिया और कहा इनको पत्थरों से मारते रहो और पीछे चिल्लाते रहो कि पागल पागल माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इस तरीके से वो चिल्लाते रहे। आका फरमाते हैं, आयशा, जिस वक्त वो मुझे मारते थे सर से लेकर पैर तक खून की फुहारें थी, पूरा वजूद खून से लहू लहान था, हत्ता के नालैन खून से भर गई। आका फरमाते हैं, बतकाज़े बशरियत जब अल्लाह के रसूल बैठ गए तो उन्होंने हुजूर को बैठने नहीं दिया, बल्कि दोनों हाथ पकड़ के हुजूर को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद हुजूर की पिंडलियों पे उन्होंने पत्थर मारे। पिंडली समझते हैं? पिंडलियों पे पत्थर मारे। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, इस तरह की मेहनत करने वाले रसूल जिन्होंने मेहनत करके दीन को हम तक पहुंचाया, आज हमारे पास दीन की अहमियत क्या है? आज हमारा नौजवान जलसे में तो कहता है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन जब फजर की नमाज की बात आती है तो बहुत सादगी से कहते हैं, मौलाना हमें नमाज का टाइम नहीं मिलता। बोलो, अगर बाप की मेहनतें सामने हो तो बड़ी से बड़ी मेहनत करने के लिए बेटा तैयार होता है कि नहीं होता? तो रसूल पाक की मेहनतों की कदर क्यों नहीं करते? क्या तुम ये सोचते हो कि आका ने चांद के 2 टुकड़े किए थे और पूरा मक्का मुसलमान हो गया था? चांद के टुकड़े करना हक है, सूरज को पलटाना हक है, दरख्तों को अपने पास बुलाना हक है, मगर याद रखो ये मोजज़ात देखकर जालिमों ने कहा था ये तो जादू है, लेकिन रसूल पाक की मेहनतें थी। उन मेहनतों की वजह से वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे। खालिद इब्ने वलीद कहते हैं, एक एक दरवाजे पर अल्लाह के रसूल दिन में 17 मरतबा गए इस दीन के लिए। अल्लाह, महसूस कर सकते हो तो महसूस करो, एक एक दरवाजे पर अल्लाह के रसूल एक एक दिन में 17 मरतबा गए। मक्के के कुफार ये प्लान बनाते थे, जब आज अल्लाह के रसूल आएंगे तो हम इतना हुजूर को सताएंगे कि दोबारा हुजूर नहीं आएंगे, लेकिन इतना सताया जाता था, आका फिर दोबारा तशरीफ लाते थे, फिर दोबारा उससे ज्यादा सताया जाता था, आका तीसरी मरतबा आते थे, फिर तीसरी मरतबा उससे ज्यादा सताया जाता था, हुजूर चौथी मरतबा आते थे। खालिद इब्ने वलीद कहते हैं, 17 मरतबा मेरे आका एक दिन में लोगों के घरों पर तशरीफ ले गए इस दीन के लिए। अब मुझे बताओ, हमारे नजदीक मजहब की अहमियत क्या है, दीन की अहमियत क्या है? अगर ट्रेन पकड़ना हो तो 5 बजे हमारी आंख खुल जाती है, लेकिन फजर की नमाज में जाना हो तो हमारी आंख नहीं खुलती। अब आपसे मैं पूछता हूँ, बताओ, जब कोई इतनी मेहनत करे, एक बच्चा होता है ना, बच्चा, अगर वो बच्चा घरौंदा बनाता है, उसके घरौंदे को तुम तोड़ो तो वो बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, हाय मेरी मेहनत, हाय मेरी मेहनत। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, बच्चे का बनाया हुआ घरौंदा अगर तुम उसकी कद्र न करो तो वो रोता है। रसूलुल्लाह का कायम किया हुआ दीन, आज ये जो दीन की बहारें हैं, आज ये जो दीन में रानाइयां हैं, आज ये जो दीन का गुलशन हरा भरा है, अगर तुम इसकी कद्र नहीं करोगे तो इसकी तकलीफ किसको होगी? अल्लाह के रसूल को होगी, मुस्तफा जाने रहमत को होगी। मेरे भाइयों, कितना अफसोस होता है ना, आज मुसलमान जिना की गंदी फिल्में रात के 3-3 बजे तक देखता है। क्या समझते हो, क्या अल्लाह के रसूल को इसकी खबर नहीं होती? हम किसी मर के मिट्टी में मिल जाने वाले का कलमा नहीं पढ़ते, हम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो जिंदा है, हमारी जानों से ज्यादा करीब है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं सबसे पूछता हूँ, अरे डिजिटल जो वो जुआ खेलने वालों, डिजिटल तौर पे जुआ खेलने वालों, जो आज मोबाइल के अंदर तुम इजी मनी के चक्कर में और तुम जो है शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने के चक्कर में जो डिजिटल जुआ खेल रहे हो, उसके बारे में आका ने फरमाया कि जो जुआ खेलेगा कयामत के दिन उसका हाथ सूअर के खून में रंगा
लगा हुआ होगा। और अगर कोई ये सोचता है कि रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, तो याद रखिए, अच्छी तरह याद रखिए मेरे भाइयों, कि मेरे आका फरमाते हैं जो जुआ खेलने के बाद नमाज के लिए जाता है और नमाज के लिए वुजू करता है, गोया वो सूअर के खून से वुजू करता है, वो सूअर के खून से हाथ पांव धुलता है। जरा बताओ तो सही मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, कितनी तकलीफ पहुंचाओगे। मैं एक जुमला अक्सर अपने जवानों से कहता हूं, हजाम की कुर्सियों पे बैठकर दाढ़ी मुंडवा करके कटरों में फिकवाने वालों, शादियों में डीजे लगाने वालों, गाने सुनने वालों, जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, औरतों को पाप की नजर से देखने वालों, मौत को भूलने वालों, आखिरत को फरामोश करने वालों, सूद और ब्याज के धंधे करने वालों, अपने घर की औरतों को फिल्मों में ले जाने वालों, अपने घर की बेटियों को ब्यूटी पार्लर तक ले जाने वालों, बेपर्दा अपनी बच्चियों को वलीमों में लेकर के घूमने वालों, कभी तुमने सोचा कि ताइफ की वादियों में रसूलुल्लाह के जिस्म पर जो पत्थर मारे जा रहे थे वो हुजूर के जिस्म को जख्मी कर रहे थे। ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम्हें तुम्हारे इश्क रसूल का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे इश्क मुस्तफा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत रसूल का वास्ता। मुझे बताओ, ताइफ में जो नबी पे पत्थर मारे जा रहे थे वो नबी के जिस्म को छलनी कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे गुनाह नबी के जिस्म को जख्मी नहीं करते, बल्कि तुम्हारे गुनाह के नश्तर नबी के दिल पर लगते हैं, अल्लाह के रसूल के दिल को छलनी करते हैं। बताओ, आशिक रसूल इसीलिए होता है कि वो अपने महबूब का दिल दुखाए, वो अपने आका का दिल दुखाए। मेरे भाई, जो अपनी माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता। जो नबी का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा कैसे आएगा। मैं जानता हूँ कि गुनाह करते वक्त किसी मुसलमान की ये नीयत नहीं रहती कि वो अपने रसूल का दिल दुखाए, वो अपने नबी को दिल को तकलीफ पहुंचाए, लेकिन लाशऊरी तौर पर नबी का दिल तो दुख रहा है ना, नबी के दिल को तो तकलीफ पहुंच रही है ना। तुम सोचते हो अरे ये मौलवी लोग क्या करेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारी अपनी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से जीते, हमारी अपनी मर्जी है। मेरे भाई, मौलवी कुछ करे ना करे उसका तो इख्तियारी कुछ नहीं, लेकिन मौला मुस्तफा जाने रहमत 24 घंटा तुझे देख रहे हैं, तू नबी की निगाह में है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब तुझे गुनाह करते देखते होंगे तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। इसी दिन के लिए मैंने पत्थर खाए थे, इसी दिन के लिए मेरे दांत मैंने शहीद करवाए थे, इसी दिन के लिए मेरे घुटने जख्मी हुए थे, इसी दिन के लिए जो है मैंने इतने दुख उठाए थे, इतनी तकलीफें उठाई थी। और फिर याद रखना, यहाँ तो हुजूर तुम्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ हुजूर का दिल दुखी हो रहा है, हुजूर के दिल पे नश्तर लग रहे हैं। बल्कि एक बात मुझे याद आई, एक नवाब साहब हजाम की कुर्सी पे बैठ के दाढ़ी मुंडा रहे थे, तो अल्लाह अकबर, एक मजसूब वहां से गुजरे तो उन्होंने कहा, नवाब साहब दाढ़ी छील रहे हो। तो नवाब साहब शायर थे, नवाब साहब ने अपनी धुन में शायराना अंदाज में जवाब दिया उस मजसूब बुजुर्ग को कि बाबा दाढ़ी ही तो छील रहे हैं, किसी का दिल थोड़े छील रहे हैं। तो उस मजसूब ने रोते हुए कहा था, अगर तुझे पता होता कि तू किसका दिल छील रहा है, अरे तेरे चेहरे पे चलने वाला वस्तरा तेरे चेहरे पे बाद में चलता है, पहले ये रसूलुल्लाह को अजियत पहुंचाता है। मेरी कौम के जवानों, तुम्हें क्या हो गया? जो तुम्हें एक गिलास पानी पिलाता है, जो तुम्हें नौकरी देता है, तुम उसके मशकूर होते हो। जिस नबी ने खुदा का पता दिया, जिस नबी ने तुम्हें कुरान दिया, जिस नबी ने तुम्हें इस्लाम दिया, मेरे भाइयों, हुजूर के दिल में हमारी मोहब्बत कितनी है। अरे हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे लिए पूरी पूरी रात हुजूर दुआ करते थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। वो रसूल जो जाने वफा है, उनको छोड़कर तुम अदाकारों के चक्कर में पड़े हो, अदाकाराओं के चक्कर में पड़े हो। बताओ, क्या हमारे घर में दीन है? बेटियों को देख लो, बेटों को देख लो, दीन हमारे घर में कहाँ है? सुबह उठते हो तो मोबाइल खोल करके पिक्चरें देखते हो, रात को पिक्चरें देखते हो, फिल्में देखते हो। नबी का जिक्र कभी किया? आका पर दुरूद कितना पढ़ते हो? हुजूर का कलमा कितना पढ़ते हो? आका का जिक्र कितना करते हो? नहीं, हुजूर कभी याद भी नहीं आते। और हीरो को रोज देख रहे हो, नचनिया को रोज देख रहे हो। अरे मेरे भाई, जिस हीरो से तूने दिल लगाया है, तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर है, तुम्हारे मोबाइल के रिंगटोन पर हीरो की आवाज में गाने हैं। इश्क नबी का करते हो, दावा इश्क रसूल है, फिर हीरो की तस्वीर मोबाइल के स्क्रीन पर क्यों है? बताओ, ये
موبائل ہیرو کے صدقے ملا ہے یا رسول اللہ کے صدقے ملا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، سب تو نبی کے صدقے میں، زندگی نبی کے صدقے میں، یہ شان و شوکت نبی کے صدقے میں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اتنی شان و شوکت کی زندگی نہیں گزرتی اگر رسول اللہ کا صدقہ نہ ملا ہوتا۔ نبی کے صدقے میں نعمتیں ملتی ہیں اور دل نچنیوں سے لگاتے ہو، وہ نچنیے کبھی ان سے ملنے جاؤ تو دیکھنا ان کا گیٹ کیپر تمہیں بھگا دے گا، ان کے دروازے کا کتا بھونک بھونک کر تمہیں بھگا دے گا، اور اگر کبھی کسی سورس سے مل بھی جائے تو ادھر ادھر منہ ٹیڑھا کر کے وہ تمہارے ساتھ ایک بار مصافحہ کرے گا چند سیکنڈ اور ایک فوٹو لے لے گا، باقی کچھ نہیں۔ اس کو دل دیا جو تمہیں جانتا ہی نہیں، اور وہ رسول جو پوری پوری رات تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، بخشش کی دعا کرتے تھے، جن کے پیر سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے امت کے لیے دعا کرتے ہوئے، اس رسول سے وفا نہیں کرتے تو پھر سن لو اب بات اینڈ کرتے ہوئے، ایک دن موت آنی، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، ایک دن موت آنی ہے، اور مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی، نہ مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں لمبی عمر دے، سب کو لمبی عمر دے، لیکن ایک دن موت آئے گی، اور جب موت آئے گی نا تو قبر میں سب چھوڑ کے چلے جائیں، کوئی بھی صاحب، یہ ناظم صاحب، مقرر صاحب، نعت خواں صاحب، عالم صاحب، امام صاحب، کوئی اپنی قبر میں نہیں آئے گا۔ کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں۔ یہ دنیا بے وفا ہے، دنیا سے بڑی بے وفا میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ میرے بھائی جن کے ساتھ 3 گھنٹے بیٹھتے ہو، 10 منٹ نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، جن کے ساتھ 3 گھنٹے بیٹھتے ہو، تمہاری میت کے بعد یہ تمہارے جنازوں میں نہیں آئیں گے، لوگ جنازے میں نہیں آتے، یہ تمہارے لیے جیتے جی دعا نہیں کرتے تو مرنے کے بعد یہ تمہارے لیے کیا دعا کریں گے؟ قبر میں کوئی نہیں آئے گا، سب منو مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے جائیں گے، بس اتنا یاد رکھ لو، سب منو مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے جائیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ بہت معافی کے ساتھ کس کس سے دل لگایا؟ جیتے جی تو جو تمہیں فون نہیں کرتے، مرنے کے بعد وہ کیا کام آئیں گے قبر میں؟ یہ بے وفا دنیا ہے، بہت بے وفا۔ بچے بھی روئیں گے دھوئیں گے گھر چلے جائیں گے، بیوی روئے گی دھوئے گی گھر پڑی رہے گی، ماں باپ روئیں گے دھوئیں گے، کوئی کسی کی قبر میں نہیں آتا۔ اور قبر وہ جگہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنا اندھیرا ہے قبر میں کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ مردہ جانے والوں کو حسرت سے دیکھ کر کہتا ہے سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ جب وہ کوئی جواب نہیں دیتا تو گویا ایک آواز آتی ہے، اے میرے غلام اگر تجھے سب چھوڑ کر چلے گئے تو تو غم نہ کر، سب چلے گئے اب آنے والا آتا ہے، کون آ رہا ہے؟ سب نے تیرے ساتھ بے وفائی کی، جانے وفا تیرے پاس آتا ہے، کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں اس سے بڑا کوئی نہیں، بے شک۔ کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں ان سے خوبصورت کوئی نہیں، بے شک۔ کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں ان سے سخی کوئی نہیں، بے شک۔ اللہ کی مخلوق میں ان سے عظیم کوئی نہیں، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ ارے کون آتا ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، حضور کی آمد ہوگی، آقا قبر میں تشریف لائیں گے۔ اب قبر میں آئیں گے تو آپ سب خوش ہو گئے نا، سب خوش ہو گئے۔ قبر میں آئیں گے تو حضور قبر میں آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں آنے کے بعد جو لوگ واقعی علم اور عشق رکھتے ہیں وہ لرزتے ہیں، حضور قبر میں آئیں گے۔ ہم تو نعرے لگا رہے ہیں حضور قبر میں آئیں گے، اور اللہ والے حضور قبر میں، وہ سینہ پکڑ رہے ہیں، وہ دل پکڑ رہے ہیں، حضور قبر میں آئیں گے۔ ہم نے اللہ والوں سے پوچھا ارے ہم تو نعرے لگاتے حضور قبر میں آئیں گے، آپ دل کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تو وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہم حضور کا سامنا کیسے؟ اللہ
अगर बेटा जिना करते हुए पकड़ा जाए तो वो अपने बाप का सामना करता है? बेटा चोरी करते हुए पकड़ा जाए और बाप को मालूम है मेरा बेटा चोरी करके आए, वो अपने बाप का सामना कर पाता है? नहीं। अब मुसलमानों, बस मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ इसी दर्द दिल पे आपसे पूछता हूँ, अगर बाप को मालूम हो कि मेरा बेटा जानी है, शराबी है, चोर है, डाकू है, तो क्या बेटा अपने बाप के सामने मुंह दिखाने के काबिल रहता है? और अगर बाप के सामने आ जाए तो बाप क्या करता है? मुंह फेरता है कि नहीं फेरता? गैरत बाप बिला तमसील कब्र में हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। सब छोड़ के चले गए थे, इमाम साहब भी, मौलाना साहब भी, मुकर्रिर साहब भी, सैयद साहब भी, सब छोड़ के चले गए थे। अगर मौलाना मुझे आप माफ करें तो एक सच्ची बात कह दूं, पीर साहब भी छोड़ के चले गए। बिल्कुल यही बात। या पीर या पीर या पीर करते हो ना, सब पीरों से मोहब्बत करो, पीरों का दामन पकड़े रहो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन कब्र में यहाँ पीर साहब भी नहीं है। और आजकल के इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं करता, लेकिन ज्यादातर जो पीर बेचारा मस्जिद में नहीं आता, वो पीर तुम्हारी कब्र में क्या आने वाला? बताइए ना। बहुत माफी के साथ, मैं आपका रिश्ता पीरों से तोड़ने नहीं आया, जोड़ने आया हूँ, लेकिन जो अल्लाह के घर में ना आए वो तुम्हारी कब्र में क्या आएगा मेरे भाई? जो औरतों से पैर दबाए वो खुद जहन्नम का ईंधन बनेगा मेरे भाई, वो क्या आएगा मेरे भाई? खुदा के लिए अपने आप पे रहम कर लो। तुमने बेवफा लोगों से दिल तो लगा लिया, लेकिन जाने वफा से वफादारी कब करोगे? मैं कहता हूँ सब सिलसिले में मुरीद हुए, नबी की वफा के सिलसिले में भी कभी मुरीद हो जाओ। अल्लाह अकबर। ये नबी की वफादारी हमारे अंदर कहाँ है मेरे भाई? बता तो सही। अल्लाह अकबर। मैं खुदा का वास्ता देकर, तुम्हारे इश्क रसूल का वास्ता देकर तुमसे कहता हूँ, जब सब कब्रों में से चले गए, मिट्टी मुंह पे डालकर अमीनुल कादरी भी गया, ये भी गया, वो भी गया, वो भी सब गया, तो कौन आया? कब्र में हुजूर आए। अब बताओ, हुजूर आए, हुजूर तो कब्र चमकाने आए, हुजूर तो जन्नत के बागों में से बाग बनाने आए, हुजूर तो थपकियां दे के सुलाने आए। मेरे इमाम कहते हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। बोलो नबी अपनी उम्मतियों को कब्र में थपकियां दे के सुलाते हैं। अरे जब माँ थपकियां देती है तो सोने में इतना मजा आता है, जब नबी के नरम नरम, रेशम से ज्यादा नरम हाथ, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार हाथ जब उम्मती को कब्र में थपकियां देंगे तो कैसे सुकून की नींद आएगी। ताजुश शरिया कहते हैं, नबी के सुलाए हुए को कौन उठा सकता है? कहते हैं, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, कोई इसको मत जगाना अभी आंख लग गई है, कोई इसको मत जगाना अभी आंख लग गई है। अरे जो नबी के दामन में सो उसका क्या हाल होगा? तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। लेकिन ये कौन नबी के दामन में सोएगा? नबी किसको थपकियां दे के सुलाएंगे? जो नबी का वफादार होगा, जिसने दाढ़ियां मुंडाकर कटरों में फिकवाई होगी और नबी का दिल दुखाया होगा, जिसने नमाजों के वक्त में मस्जिद के जीनों पे बैठ के मोबाइल के गेम खेले होंगे, अल्लाह अकबर, जिसने नबी के दुश्मनों के साथ रिश्तेदारियां की होगी, नबी के गुस्ताखों को अपनी बेटियां दी होगी, उनसे बेटियां ली होगी, जिनकी बेटियां ब्यूटी पार्लरों में सजने धजने के लिए गई होगी, उनके साथ क्या होगा? क्या उनको भी नबी थपकियां दे के सुलाएंगे? मैं उनको नबी का गद्दार तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन याद रखो, गौर से सुन लो, नबी कब्र में आए, तसव्वुर करो, बाप चला गया, भाई चला गया, माँ छूट गई, बच्चे छूट गए, सब छूट गए, किसका सहारा था? बोलो किसका सहारा था? हुजूर का सहारा। अब हुजूर कब्र में आए और आपको और हमें देखा, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, हजार बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, किसका सहारा रह गया? ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई, सिर्फ हुजूर का सहारा है, बाकी सब सहारे छूट गए। ऐसे में हुजूर से आंखें मिली और हुजूर ने देखा और कहा, अच्छा तू ही था, सूद के धंधे करता था,
اللہ ब्याज के धंधे करता था। तूने मेरा फरमान नहीं सुना था कि जिसने सूद का ब्याज का एक लुक्मा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना किया। اللہ اکبر اللہ तू ही था नमाज का मजाक उड़ाता था, तू ही था जो मस्जिदों के दरवाजे पे बैठ के गेम खेलता था लेकिन तुझे मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं थी। तू ही था जो ओवर स्मार्ट बनने के लिए चेहरे से दाढ़ियां मुड़ा मुड़ा कर गटरों में फेंकवाता था। तू ही था जिसने शरीयत को पीठ के पीछे डाल रखा था। और ऐसे में हुजूर जलाल में आए, गुस्से में आए। अल्लाह न करे गजब से उनके खुदा बचाए। जलाल बारी इताब में है, अल्लाह अकबर। हुजूर जलाल में आ जाए, गुस्से में आ जाए और मुंह फेर कर, चेहरा फेर कर, रुख अनवर फेर कर तेरी कब्र से जलाल में गुस्से में वापस चले जाएं। मुझे बताओ मेरे भाई, बस इतनी बात मैं तुम्हें इतनी दूर से कहने के लिए आया था। अगर अल्लाह न करे हुजूर चेहरा फेर लें तो फिर दुनिया में और आखिरत में मुझे और आपको कौन बचाएगा? अपने आप पे रहम कर लो। 10 मिनट का टाइम मस्जिद के लिए निकाल लो, नमाज के लिए 10 मिनट का टाइम निकाल लो। आशिकों ने तो पहली रात की दुल्हन छोड़ करके शहादत को कबूल किया और हम लोग नींद छोड़कर 10 मिनट की नींद कुर्बान करके मस्जिद में नहीं आ सकते। नारे तकबीर, जुआ नहीं छोड़ सकते, नारे गौसियत, नशा नहीं छोड़ सकते, बदनिगाही नहीं छोड़ सकते। ये मेरी माएं और बहनें बैठी है। बीमारी से बचने के लिए लोग मुंह छुपा सकते हैं, कोविड से बचने के लिए, और हुजूर की खुशी के लिए औरतें पर्दा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती पर्दा। सैयदा फातिमा ज़हरा के पर्दे का आलम यह है कि उनके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ना देखे। और हमारा हाल क्या हो गया? इसलिए अल्लाह के लिए तौबा करो, हुजूर को मनाओ, हुजूर को राजी करो। आका राजी हो जाएंगे, आका से वफा करो। याद रखना, अगर ये समझते हो कि मैं सुन्नी हूँ और मैं झंडा लगाता हूँ, जुलूस निकालता हूँ, इसी पर मैं नबी का वफादार हूँ, मैं आपको गद्दार कहने नहीं आया। लेकिन इतना जरूर है, झंडे की अहमियत अपनी जगह है, जुलूस की अहमियत अपनी जगह है, जलसे की अहमियत अपनी जगह है, नाते रसूल की अहमियत अपनी जगह है। लेकिन अगर गुनाह करते हो तो इससे नबी का दिल दुखता है। अब आपके ऊपर है, आप नबी को खुश करना चाहते हो या नबी का दिल दुखाना चाहते हो? मेरे भाई, जो माँ का दिल दुखाए जब मरते वक्त तो उसको कलमा नसीब नहीं होता, तो जो नबी का इतनी बार दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा कैसे आएगा? इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया, अगर हुजूर नाराज हो गए, दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। मेरी माएँ और बहनें मौजूद है, उनसे भी कहता हूँ, नमाज के लिए वक्त निकालो, नमाज के लिए टाइम निकालो और अपने बच्चों को इल्म से रोशनास कराओ, बच्चों को तालीम दो, अच्छी तालीम दो। कम से कम एक एक घर में एक आलिम, एक हाफिज होना जरूरी है। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, टीचर बनाओ, एडवोकेट बनाओ, तालीम पे मेहनत करो। आज मुसलमान क्या कहते हैं? हमारे पास तालीम के लिए पैसे नहीं है, तालीम महंगी हो गई है। मैंने कहा भाई, जूते भी महंगे हो गए, कपड़े भी महंगे हो गए, मोबाइल का रिचार्ज भी महंगा हो गया, दाल और शक्कर भी महंगी हो गई। लेकिन कभी वापस आए शोरूम से, यार मोबाइल महंगा हो गया, हमने नहीं खरीदना, जूते महंगे हो गए, हमने नहीं खरीदना, शक्कर और दाल महंगी हो गई, हमने नहीं खरीदना। हर महंगी चीज खरीदते हो तो तालीम के लिए बहाना क्यों लगाते हो कि तालीम महंगी हो गई? जब ये दुनिया ही महंगी है तो फिर इस महंगे जमाने के अंदर 8 घंटे की बजाय 12 घंटा मेहनत करो, 12 घंटे की बजाय 14 घंटा मेहनत करो और ज्यादा मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों की तालीम पर कोशिश करो। और एक बात आपको बताऊं, 2-2 करोड़ की मस्जिदों के गुंबद बनाने की बजाय, 2-2 करोड़ के मस्जिदों के मीनार बनाने की बजाय, वो 2 करोड़ का मीनार और गुंबद बनाने की बजाय वो करोड़ों रुपए अच्छी स्कूलों के लिए खर्च करो, अच्छे मदरसों के लिए खर्च करो, अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए खर्च करो, अच्छी तालीम गांव के लिए। बहुत बहादुर बनते हो ना, हमारी बच्चियों को पर्दे में पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, हम नारा लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा तुम्हारी बच्चियां लोगों की स्कूल की मोहताज क्यों हैं? अरे तुम अपने शहर में, अपने मोहल्ले में खुद इस्लामिक स्कूल कायम करो, अंग्रेजी तालीम हो और इश्क़ रसूल के
के माहौल में, पर्दे के माहौल में हम अपनी बच्चियों को खुद पढ़ाएं। मेरे भाइयों, मुसलमानों के पास पैसा कम नहीं है, मगर मुसलमान पैसा कहाँ खर्चा कर रहा है? उर्स में खर्चा कर रहा है, जलसे में खर्चा कर रहा है, डीजे में खर्चा कर रहा है, जुलूस में पटाखे फोड़ करके खर्चा कर रहा है। मेरे भाई, मैं तुझे मना नहीं कर रहा उर्स का, उर्स कर, लेकिन वैसा कर जैसे गरीब नवाज करते थे, ख्वाजा उस्मान हरवनी का, बाबा कुतुबुद्दीन करते थे गरीब नवाज का, बाबा फरीद करते थे बाबा कुतुब का, बाबा निजामुद्दीन करते थे बाबा फरीद का। उर्स ऐसा करो जैसे अपने बुजुर्गों ने किया। ये क्या, हम लोग 1-1, 2-2 लाख रुपया सिर्फ चादर में, घाघर में खर्चा कर देते हैं। अरे चादर चढ़ाओ, 1000 की चढ़ाओ, 99,000 बचाकर किसी अच्छे स्कूल में लगा दो, किसी अच्छे मदरसे में लगा दो। कुछ यतीम बच्चे जो ड्रॉप आउट होना चाहते हैं, फीस नहीं भर सकते, वो अपने पीर के नाम से फीस भर के किसी बच्चे को डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, एडवोकेट बना दो। जहां खर्चा करना है वहां नहीं करते, और जहां नहीं करना है वहां करते हो। पैसा बहुत मेहनत से आता है, अपने पैसों को बर्बाद न करो। ये बातें लोगों को बुरी लगती है, लाख बुरी लगे, हम तो मिजाज ये रखते हैं, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। हम मरासिम अहले सुन्नत के मुखालिफ नहीं है, लेकिन मरासिम अहले सुन्नत में जो तुमने खुराफात और बिदात शामिल कर दिए हैं, हम उसके मुखालिफ हैं, हम उसको बोलते रहेंगे। यहाँ कितने सेठ लोग होंगे, मालदार लोग होंगे, जो उर्स में कव्वालों पर लाखों रुपया ऐसे लुटा देते हैं। मैं कहता हूँ मेरे भाई, मैं जायज नाजायज की बहस में अभी नहीं जाता, इतना कहता हूँ, वो जो लुटाते हो ना, उसमें किसी बेवा के सर पे दुपट्टा डाल दो। वो जो लुटाते हो ना, किसी यतीम की स्कूल की फीस भर दो। खुदा के लिए जरा ये सारे काम करो, ताकि पीर की रूह भी खुश हो, रसूलुल्लाह भी हमसे खुश हो, खुदा भी हमसे राजी हो। वगर ना अपनी मर्जी से जियोगे तो फिर अपनी मर्जी है। कुरान कहता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इसलिए अगर राजी करना है, अल्लाह रसूल को राजी करो, दीन पर अमल करो। और एक बात का हमेशा ख्याल रखना, मेरा उठने वाला कदम मेरे नबी को खुश करेगा या नाराज करेगा, इसके साथ जिंदगी जियो। कुरान कहता है, वल्लाहु व रसूलुहु अल्लाह और उसका रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। और मेरे इमाम ने तो फिर पैगाम दे दिया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। मुसलमानों, जो बात मैं कर रहा हूँ ये तकरीर नहीं बल्कि ये दिल की आवाज है। अगर ये बात तुमने समझ लिया तो तुम अपने मुकद्दर पे रश्क करोगे। कोई सिकंदर और किसी की कोई औकात नहीं है तुम्हारे सामने। मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। 16 साल मेहनत करके जिसने जंगलों बियाबान में घास फूस पर सोया और आधी से ज्यादा दुनिया फतेह की, जब जनाजे में गया तो खाली हाथ गया और उसको क्या मिला? आधी से ज्यादा दुनिया की हुकूमत मिली और हाथ खाली गया। लेकिन सुन्नियों, उसको आधी से ज्यादा दुनिया मिली है और तुम्हें अल्लाह का महबूब मिला है, तुम्हें मालिक कौनैन मिला है, तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत मिले हैं। और तुम जब दुनिया से जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे, अपने जनाजे में हाथों में दामने मुस्तफा लेकर के जाओगे। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? और अगर तुम दामने मुस्तफा ले जाने में कामयाब हो गए तो मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। अरे ये इंसान क्या इंसान, फरिश्ते भी तुम्हारी ताजीम करेंगे। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। किस बुनियाद पर? तुम्हारे हाथों में दामने मुस्तफा अगर रह गया, जनाजे में तुम दामने मुस्तफा ले गए, फरिश्ते तुम्हारी ताजीम करेंगे। तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। अगर उलमा बैठे हुए हैं पीछे तो मैं उनकी तवज्जो चाहता हूं दुआ लेने के लिए। तुम्हें जन्नत में जाने की जरूरत नहीं है, जन्नत तुम्हारी कब्र में सिमट आएगी और तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। ये कब होगा? जब तुम नबी से वफा कर लोगे, रसूलुल्लाह से वफा कर लोगे। तुम सबके सब आशिक़े रसूल है। अब बस एक बात करके बात पूरी कर लेना है, जितनी देर में आप समझ लें। अल्लाह अकबर। नबी से वफा किसे कहते हैं? नबी ये पाक से वफादारी का मतलब क्या है? तुम सब आशिक़े रसूल हो ना मेरे भाई, तो अब बताओ, रसूलुल्लाह से हमें वफा करना है,
اللہ ہمارا ہوگا اگر ہم نے نبی سے وفا کر لی۔ اقبال نے تک کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تم روزی روٹی کے لیے پریشان ہو خدا تمہارا ہو جائے اگر تم نبی سے وفا کر لو، ارے تم اللہ اکبر بٹیا کی شادی کے لیے پریشان ہو خدا تمہارا ہو جائے اگر تم نبی سے وفا کر لو، اللہ اکبر یہ نوکریاں کیا چیز ہے دنیا تمہاری غلام بن جائے اگر تم نبی سے وفا کر لو، نیند کی گولی کھا کر کے تمہیں نیند نہیں آتی، نیند کیا چیز ہے جنت تمہارے پاس سمٹ آئے، اللہ اکبر اگر تم نبی سے وفا کر لو، میرے بھائی نیند کیا چیز ہے کیا آپ نے نہیں سنا، اللہ اکبر وہ بغداد کا بہلول جسے دنیا بہلول دانا کہتی ہے وہ دیوانہ گھروندہ بنا کر جنت بیچتا ہے بادشاہ کی بیوی کو، اللہ اکبر نبی کی وفا کتنی بڑی چیز ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے آپ سب سے معافی چاہتے ہوئے، کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ میلاد منانے والوں، 1500 سالہ جشن منانے والوں، قمقمے لگانے والوں، جھنڈے لگانے والوں، اپنے گھروں کو سجانے والوں، مجلسہ سجانے والوں، مرید ہونے والوں، قادری، برکاتی، رضوی، اشرفی، چشتی، وارسی، مداری سب پڑھنے والوں، کیا ہمارے اندر وفاداری ہے نبی کی؟ یاد رکھنا اگر نبی کی وفاداری ہے تو تم قادری ہو ورنہ تم قادری کہلانے کے حقدار نہیں ہو، اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تم چشتی ہو ورنہ تم چشتی کہلانے کے حقدار نہیں ہو، اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تم مداری ہو ورنہ تم مداری کہلانے کے حقدار نہیں ہو، اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تم رضوی ہو ورنہ رضوی کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ آپ کہیں گے امین القادری یہ نبی کی وفاداری کیا ہوتی ہے؟ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اور بات پوری ہوگی کیونکہ بات ہو چکی، 2.25 گھنٹہ جب نبی کی نعت ہوئی تو بات ہو گئی، اس لیے کہ ذکر نظم میں کیا جائے یا نثر میں کیا جائے، ذکر ہوتا ہے، محبوب کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اب یہاں 2 سوال کرنا ہے مجھے آپ سے، کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ اللہ اکبر مثال کے ذریعے سمجھو، ایک بندہ ہے، توجہ کرنا بہت دھیان سے سننا، میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہو اور یاد رکھنا تقریر اتنی توجہ سے نہیں سنی جاتی، دل کا درد ہی سنجیدگی سے سنا جاتا ہے، جب کوئی دل کا درد بیان کرتا ہے تو آدمی کان لگا کے سنتا ہے کیا کہہ رہا ہے ذرا سنو تو صحیح، بعد میں نتیجہ نکالیں گے، اللہ اکبر توجہ کرنا میرے بھائیوں، ایک بندہ ہے، کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ ہاں یا نہیں کچھ مت بولنا، صرف سننا، بس آج سننا ہے آپ کو، کچھ نہیں کہنا ہے، اللہ اللہ۔ کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ ایک بات کہوں، اگر نبی کے وفادار ہو جاؤ گے نا تو نبی تمہاری میت کے دن تمہارے گھر تمہیں لینے آئیں گے، یہ ایک ایک جملے کا ذمہ دار میں ہوں، ایک ایک جملے کا ذمہ دار میں ہوں، جس کو ثبوت چاہیے میں حوالہ بھی پڑھ دوں گا، ابھی حوالہ اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ تقریر نہیں ہو رہی، دل کا درد ہو رہا ہے، بربتے دل پر عشق کے تار چھیڑ رہا ہوں۔ اگر مائک والا بھیا یہاں موجود ہے اس سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا مائک کی آواز اگر وہ کھول دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو کھول دے گا انشاءاللہ، اس کے سوئے مقدر کو کھول دے گا انشاءاللہ۔ مائک بہت اچھا ہے لیکن تھوڑی سی آواز کھل جائے تو عرض یہ کر رہا تھا کیونکہ یہ بات تھوڑی کھلے فضا میں کہنے کی ہے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں۔ کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ اگر ہم نبی کے وفادار ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں نبی قبر میں تشریف لاتے ہیں، میں نے کہا آتے سب کی قبر میں، لیکن جو وفادار ہوتا ہے مرنے سے پہلے حضور اس کے سرہانے ہوتے ہیں، اس کو لینے خود آتے ہیں۔ اب بتاؤ جس کو لینے رسول اللہ آئے اس کو قبر کا خوف کیا ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں یوسف علیہ السلام کو دیکھیں تو انگلیاں کٹنے کا درد نہ ہو، جانے یوسف سامنے ہو تو روح نکلنے کا مزہ کیا ہوگا۔ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے۔ اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ غور کیجئے گا جو نبی کے وفادار ہوتے ہیں نبی ان کو لینے تک آتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر قبر میں اس کو بعد میں اتارا جاتا ہے، پہلے رسول اللہ اس کی قبر میں خود تشریف لاتے ہیں، اس کے اترنے سے پہلے حضور آتے ہیں اس کو سہارا دینے کے لیے۔ کوئی وفادار ہو کر تو دیکھے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ ہزاروں لوگ
लोग सरे शाम से लेकर अभी रात निस्फ गुजर चुकी, रात की सियाह जुल्फें उसके कमर से नीचे ढलक कर घुटनों की तरफ पड़ रही है। ऐसे में आप यहाँ इश्क रसूल में बैठे हुए इतनी गर्मी में सुन रहे हो। क्या हम नबी के वफादार हैं? मैं कोई फतवा देने नहीं आया, लेकिन अपने आप से पूछो, दिल सबसे बड़ा मुफ्ती होता है। क्या हम नबी के वफादार हैं या नबी पे जुल्म करने वाले हैं? नबी पे जुल्म करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? नबी से जफा करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? क्या हम नबी के वफादार हैं? बस इतनी सी बात है। अब आपसे पूछता हूं, एक शख्स है, एक शख्स एक देहात में रहता है, देहात में रहता है, उसके घर में फाका कशी है, फाके पे फाका है, फाके पे फाका है। वो शख्स जो है, आपके ये गांव का नाम क्या है? आपके जंतीरा, जंतीरा से निकला और निकलने के बाद दिल्ली गया, दिल्ली गया, जगह जगह जाता है, घर घर जाके कहता है, मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मेरी बीवी के दुपट्टा फट गया है, उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मुझे घर घर जाता है और घर घर जाता है और धक्के खाता है। और गौर से सुनना, घर घर जाता है, धक्के खाता है, घर घर जाता है, धक्के खाता है। ऐसे में फिर उसको नौकरी मिलती है, वो मेहनत करता है, मेहनत करके खूब माल कमाता है। और जब माल कमाता है तो दिल्ली में उसका बहुत बड़े पौश इलाके के अंदर एक महल बन जाता है। उसके दो बेटे होते हैं, एक बेटा उसकी कमाई हुई दौलत को निकालता है और निकाल के ले जाकर जिना के अड्डे पे ले जाकर के खर्च करता है। वो रकम को निकालता है, निकाल कर उसकी सिगरेट पीता है, उसके पटाखे फोड़ता है, उसके डीजे लगाता है, नचनियों पे खर्च करता है, मुजरों पे खर्च करता है, गानों पे खर्च करता है। एक बेटा ऐसा है। दूसरा बेटा कहता है, नहीं नहीं, मेरे बाप ने बहुत मेहनत से कमाया है, मेरे बाप का पसीना माथे से जो है वो पैर तक आया है, तब कहीं जाकर ये बिल्डिंग बनी है, तब कहीं जाकर ये बंगला बना है, तब कहीं जाकर ये माल आया है। मैं अपने बाप की दौलत को आग नहीं लगाऊंगा, इसकी हिफाजत करूंगा, इसमें बढ़ोतरी करूंगा। अब मुझे बताओ, दोनों में बाप का गद्दार कौन है और बाप का वफादार कौन है? बाप पर जुल्म करने वाला कौन है और बाप का गद्दार कौन है और बाप का वफादार कौन है? बोलो, आप क्या जवाब दोगे? अब जवाब देने का वक्त आया। बोलो, दोनों भाइयों के अंदर कौन वफादार है? बोलो, कौन वफादार है? बात समझ में आई तो अब जवाब दो। कौन वफादार है दोनों भाइयों में? जो बाप की दौलत का ख्याल करता है, जो बाप की मेहनत का ख्याल करता है। यही है, मैं सही कह रहा हूं? बोलो भाई, सही कह रहा हूं? आवाज आपकी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी बात का तायीद करें। बोलो, जो बाप की मेहनत का एहसास करे वो वफादार है, या जो बाप की मेहनत का एहसास न करे वो वफादार है? दोनों में वफादार कौन है? आखिरी तक बोलो, कौन है वफादार? आप जवाब देंगे सब। कौन वफादार है? जो बाप की, जाहिर सी बात है आपके पास माइक नहीं है, लेकिन अगर आप जवाब देंगे तो यहां तक आवाज आएगी। सब मिलके बोलो, बोलो, बाप का वफादार कौन है? जो बाप की मेहनत का ख्याल करता है। और जो बाप की मेहनत को ख्याल नहीं करता वो बाप पर जुल्म करता है, बाप का गद्दार है तो बाप ही का बेटा मगर गद्दार है। अगर इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई, सब समझ गए, इसको यहीं छोड़ दो। इस मिसाल को मिलाने के लिए नहीं कहा, समझाने के लिए कहा। अब बताओ, तुम्हारा बाप दर दर भटकता है, तब जाकर के दौलत आती है। अब बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, करोड़ों बार बिला तमसील नबी जमीन पर क्यों आए? कुरान कहता है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। ये वो अल्लाह है, बल्कि वो वही है जिसने दीन हक के साथ अपने रसूल को भेजा। और रसूल क्यों आए? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि दीन हक गालिब आ जाए, दीन हक को गलबा नसीब हो जाए। यानी मेरे और तुम्हारे रसूल ने इस दीन को, ये जो छोटा सा देहात है जिसका नाम भी मुझे याद नहीं रह पा रहा है, इस छोटे से देहात में अगर नमाज पहुंची है, अगर कुरान पहुंचा है, अगर इस्लाम पहुंचा है, तो ये मेरे नबी की मेहनतों का नतीजा है। अरे बाप की मेहनतों को याद रखने वालों, तुम्हें रसूल पाक की
محنت یاد ہے؟ آئیے تھوڑا سا اس کو یاد کر لو اور پھر کہو کہ کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ لوگو اللہ اکبر، باپ کا پسینہ سر سے پیر تک آتا ہے تو تمہارا بنگلہ بنتا ہے، باپ کا پسینہ سر سے پیر تک آتا ہے تو تمہاری دولت اکٹھا ہوتی ہے، لیکن نبی کا پسینہ پیر تک نہیں آیا، بلکہ نبی کا خون تھا جو پیشانی سے نکلا اور اس سے نالین بھر گئی۔ یعنی دین کے لیے نبی پاک کی محنت کتنی ہے، اس محنت کو کبھی یاد کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، بیوٹی پارلروں میں جانے والی میری بہنوں، تھوڑا تصور تو کرو، اللہ اکبر، اس دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے نبی نے کتنی محنت کی ہے، رسول پاک نے کتنی محنت کی ہے، حضور کی محنتوں کا عالم کیا ہے، اللہ اکبر۔ بس اس کو سمجھ لو، کیا ہم نبی سے وفا کر رہے ہیں؟ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتی ہے، سوال بھی خود ہی کرتی ہے، جواب بھی خود ہی دیتی ہے، کہتی یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن ہے نا؟ اللہ اکبر، چونکہ وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، اللہ اللہ، ام المومنین کہتی ہے احد کا دن سب سے مشکل دن تھا نا آقا؟ آقا فرماتے نہیں عائشہ، حالانکہ عائشہ صدیقہ ام المومنین نے احد کا دن دیکھا تھا، احد کا دن کتنا مشکل تھا، اللہ اکبر۔